Welcome, my dear students, to our next class of metal ligand bonding in transition metal complexes. So in this class, we are going to discuss about crystal field splitting in tetrahedral, tetragonal and square planar complexes. हमने अपनी पिछली क्लास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल का केस, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर का केस। ठीक है। And what are the other factors which affects the crystal field splitting? So let us go ahead with tetrahedral complex. अब टेट्राहेड्रल में जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम एक कोई क्यूब ले लें और उसके सेंटर में हम मेटल ट्रांजिशन मेटल को प्लेस करें तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, दो ऊपर कॉर्नर्स और जो दो नीचे के कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इनको हम टच करें तो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का डायग्राम आपके सामने आता है। So here the coordination number is 4. That means the central metal atom, this is surrounded by 4 of the ligands. And the d orbitals exactly point towards the ligand in tetrahedral complex. ठीक है, जो d orbitals हैं वो exactly point कर रहे हैं towards the corresponding ligands. अब यहाँ पे देखें ये जो white है ये हमारे axis हैं. We have x axis, we have y axis, we have z axis. ठीक है। The orbitals which are lying in dxy, dyz and dxz, they are pointing in a direction which are close to the direction of approach. जो मेरे dxy हैं वो कहाँ होंगे? ये x और y हैं तो इनके बीच में, ठीक है। ऐसे ही मेरे yz कहाँ होंगे? वो y और z के बीच में, ठीक है। ऐसे ही मेरे xz होंगे वो x और z के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। और जो मेरे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैं ये आप देखें तो दिस वन इज अ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे लिगैंड से बहुत दे लाई इन बिटवीन दोज लिगैंड्स, हेंस द एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स दिस विल इंक्रीज, क्योंकि ये लिगैंड्स के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और वहीं पे अगर मेरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है, इनको देखें तो ये इन लिगैंड्स के इन बिटवीन लाई करते हैं, दैट मीन्स ये उनसे दूर है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है वो घट जाती है। सो दिस इज रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल केस। ऑक्टाहेड्रल के केस में डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स इनकी एनर्जी घट गई थी और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई थी। यहाँ पे उसका रिवर्स है। So what happened is here these dxy, dyz and dzx they are designated as T2 orbitals and they have higher energy than your E orbitals. अब ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने जो सबस्क्रिप्ट G है जो हमने ऑक्टाहेड्रल में यूज किया था वो यहाँ यूज नहीं किया है। Why? Because G is called for Girard, ठीक है। जो Girard है वहां पे there is a center of symmetry. Here in tetrahedral case we don't have any center of symmetry. That means अगर मैं इनको रिवर्स करूं I don't get the same identical molecule, ठीक है। So center of symmetry के ना होने की वजह से we don't use T2G, we simply write T2 orbitals. So orbitals like dxy, dyz, dzx they are pointing in a direction close to the approach of ligands, that is why the energy will increase, and other orbitals dx square minus y square and dz square their energy will decrease. So let us look at the energy diagram. So metal d orbitals we have 5 degenerate orbitals, ठीक है। तो जैसे ही हम इनको spherical crystal field में ले जाते हैं तो their energy increases. Then in case when we have crystal field splitting, ठीक है, in case of tetrahedral complex your energy of dxy, dyz and dzx this will increase to a factor of 4dq, ठीक है। Similarly for dx square minus y square and dz square their energy will decrease to a factor of minus 6dq. So this splitting delta t, ठीक है, delta t is for tetrahedral. So delta O और डेल्टा टी में क्या डिफरेंस है? योर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज -4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो इसमें दो चीजें हैं,
First is the negative sign that indicates that the order of splitting is reverse of that of octahedral. Second thing is 4/9. ठीक है, that means जो मेरी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से कम है टू अ फैक्टर ऑफ 4/9. सो एज पर हंट्स रूल, जब हम इलेक्ट्रॉन के पुट करने की बात करेंगे, लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, सो दे विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई any one of those two orbitals, dx square minus y square and dz square, which are stabilized by a factor of 6 dq. So and since we know that the tetrahedral splitting is very less, ठीक है, and in fact it is lesser than pairing energy. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयरिंग को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है. सो दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई दीज लोअर फर्स्ट एंड देन द हायर, ठीक है. So here in this case they will form high spin complexes. As you can see, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, so this one electron they are stabilized by a factor of -6 dq. So we have crystal field stabilization energy for tetrahedral complex of d1 configuration equal to -6. If we have d2, we have twice of this. If we have d3, the one electron will not pair up. ठीक है, जैसे हमने कहा कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल के केस में वो लेस है पेयरिंग एनर्जी से, जिसकी वजह से पेयरिंग प्रेफर नहीं होगी, स्प्लिटिंग प्रेफर होगी. तो स्प्लिटिंग के केस में क्या होगा, मेरे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप ना होकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरह जाएंगे. दैट मीन्स वी हैव पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ठीक है, एंड विद द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हियर वी हैव ट्वाइस ऑफ -6 प्लस 1 ऑफ 4dq. ठीक है, ये ध्यान रहे कि ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे CFSE की कैलकुलेशन अलग है, टेट्राहेड्रल के केस में CFSE की कैलकुलेशन अलग है, बिकॉज इन ऑक्टाहेड्रल वी हैव स्प्लिटिंग ऑफ -4dq, ठीक है. टेट्राहेड्रल वी हैव अ स्प्लिटिंग ऑफ -6dq फॉर स्टेबलाइजेशन एनर्जी. So what are the various factors which favors the formation of those tetrahedral complexes? ठीक है. So the larger, the bulkier the ligands, it will cause steric crowding. ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम के आसपास ऐसे लिगेंड्स हैं जो जिनकी साइज बहुत ज्यादा है, जो बल्कियर है, सो दे विल रिजल्ट इन द मोर रिपल्शन. जितना जितना लिगैंड लिगैंड रिपल्शन होगा उतना वो फेवर करेगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स को देन योर ऑक्टाहेड्रल arrangement. So it will form a lesser coordination number species and hence a tetrahedral arrangement will be preferred over your octahedral arrangement. So, and another thing is if we have a low oxidation state of central metal atom, so it reduces the value of crystal field splitting and hence favors the formation again of tetrahedral complex. अगर सेंट्रल मेटल एटम का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो उतनी हायर स्प्लिटिंग देगा, तो वो हमें ऑक्टाहेड्रल देता है. अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कम है सो इट विल प्रेफर लोअर स्प्लिटिंग, दैट मींस लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मींस वी हैव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी प्रेफर्ड. एंड इफ वी हैव वीक लिगैंड्स, अगेन सो वीक लिगैंड है सो इट रिड्यूसेस योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड हेंस अगेन फेवर्स द tetrahedral complex rather than your octahedral ones. So metal ions such as which has an electronic configuration of D0, D5 and D10, so they will again has a CFSE equal to 0. ठीक है, आपने अगर पहले कैलकुलेट करके देखा होगा whether it is octahedral or tetrahedral, the CFSE for D0, D5 and D10 they are 0. ठीक है, तो जहां पे मेरी वैल्यू 0 है सो अगेन दोज कॉम्प्लेक्स विल फेवर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देन योर octahedral ones. Now if you look at the crystal field splitting in case of tetragonal and your square planar complexes, तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेट्रागोनल के केस में क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज था, तो वहां पे स्प्लिटिंग मेरी क्या थी, जो मेरे x² - y² ऑर्बिटल थे और z² ऑर्बिटल थे ये सेम उसी डायरेक्शन में थे जहां पे मेरे लिगैंड्स अप्रोच करते हैं. तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हुआ, जो मेरे ये dx² - y² और dz², ठीक है, इनकी एनर्जी बढ़ गई ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है, और बाकियों की एनर्जी घट जाती है.
वहीं टेट्रागोनल में क्या देखते हैं, टेट्रागोनल में मेरे जो जेड एक्सिस पे लिगेंड्स हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है और मेरे जो एक्सियल लिगेंड्स हैं इनका डिस्टेंस कम होता है। तो जिनका डिस्टेंस कम है, ठीक है, दैट मीन्स जो उसी ऑर्बिटल में लाई करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो उनकी एनर्जी मेरी बढ़ जाती है ड्यू टू रिपल्शन। और जिनका डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रिपल्शन मेरा कम है, तो उनकी एनर्जी घट जाती है, ठीक है। सेम इज द केस फॉर डी एक्स वाई, तो जो एक्स वाई प्लेन पे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी घट जाएगी, बढ़ जाएगी ड्यू टू रिपल्शन, और बाकी एक्स जेड और वाई जेड की घट जाएगी, ठीक है। सेम स्क्वायर प्लेनर में क्या है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में भी मेरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं जहां पे मेरे लिगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से मेरी इनकी एनर्जी जो है वो और बढ़ जाती है। और क्योंकि डी जेड स्क्वायर वाले एक्सिस पे कोई भी लिगेंड्स नहीं है स्क्वायर प्लेनर के केस में, तो उनकी एनर्जी मेरी बहुत कम है, ठीक है। सेम डी एक्स वाई, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि ये सेम प्लेन है, और डी एक्स जेड और वाई जेड की एनर्जी घट जाती है, ठीक है। तो यही केस हमारा मतलब ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल और टेट्रागोनल से स्क्वायर प्लेनर के केस में होता है। So as you can see, we have higher energy in case of dx square minus y square dxy, and lower energy in case of dz square and dxz and yz. Similarly, we have higher energy for dx square minus y square. And what are, now let us discuss the factors on which this magnitude of crystal field splitting depends. First of all, the nature of ligands. जो हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम पे, उनके अंदर कितना ईज है, दैट मीन्स उनका साइज क्या है, ठीक है, दैट विल डिटरमाइन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। So ligands with smaller size and larger negative charge, ठीक है, they produce larger crystal field splitting. जितना उनका साइज कम होगा और उनका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ही मेरी वो स्प्लिटिंग CFSC देगा। So let us see like iodide ion, bromide ion, ठीक है, इनका साइज ज्यादा बड़ा है, चार्ज इन पे कम है, ठीक है। वहीं पे मेरे साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड आयन, ये मेरे स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड्स के अंदर आते हैं, इथिलीन, डायमीन, अमोनिया, ठीक है। तो इनके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। So we have weak field ligands like these, and we have stronger field ligands like them. तो वीक फील्ड लिगैंड से क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड आएगा तो मेरी जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी अगर मेरी कम है पेयरिंग एनर्जी से, सो दे विल प्रेफर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मेरे इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के बाद EG में पहले फिल होंगे, देन द पेयरिंग विल अकर। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड्स हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो मेरी ज्यादा है पेयरिंग से, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, सो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू सिट इन द लोअर एनर्जी, that is T2G orbitals only. That means the electrons will pair up. As you can see, COF6, your fluoride is a weak field ligand, तो उसकी वजह से पेयरिंग नहीं हो रही है, तो मेरे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। वहीं पे सेम ट्रांजिशन मेटल कोबाल्ट है, बट स्ट्रॉन्गर फील्ड की वजह से वहां पे पेयरिंग हो रही है, ठीक है। सो वी हैव अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज हियर। So we have high spin, paramagnetic, we have low spin and diamagnetic. So thank you students. So that is all for today. तो आज के जो क्विज आपको मिलेगा उसको अटेम्प्ट जरूर करें, और लेक्चर अगर अभी भी कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन रेज योर क्वेरी और यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।